Hello everyone. Let's start with the new topic Mesolithic culture, a fascinating yet often overlooked phase of human prehistory. Or ये period, it is situated between 10,000 BC to 5,000 BCE and acts as a transitional bridge between both Paleolithic and Neolithic. फिर Paleolithic की बात करें तो we are talking about big game hunting and Neolithic की बात करें we are talking about sedentism, we are talking about domestication. और इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है it has been filled by Mesolithic. फिर इस एज में there were many changes. First, it was the end of last ice age. और उसके बाद there were subsequent environmental changes. और उन environmental changes के साथ ही there were significant changes in the subsistence pattern, in the technology, in way of social organization. और जो Mesolithic human है, it shows a fascinating way, a fascinating keenness for innovation to settle with any kind of atmosphere, any kind of environmental changes, an agility, a kind of agility which was never seen before. क्योंकि ये हम ही हैं, our family, our ancestor जो ice age में, they adapted, they lived through the ice ages, then they lived through the Pleistocene epoch. फिर उसके बाद we are now looking at something totally different. जैसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेसिस की टाइम से उनके टाइम से बात करें, सो इट वाज द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट लेड टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और उसके बाद ओपन सवानाज आए, और ओपन सवाना से जो बाइपेडलिज्म शुरू हुआ, और उसके बाद से लेकर अभी तक की जर्नी फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स टू, ये कह सकते हैं 10,000 BCE. उस दौरान we have had to go through a lot of changes, lot of adaptation, and that's the agility I talk about, that's the resilience, that's the innovation I talk about. और फिर यहाँ पे भी we are looking at something totally different, कि इससे पहले जो पेलियोलिथिक एंसेस्टर्स थे उनके दिमाग में उनके पास कुछ था, द लार्ज गेम्स, मैमथ्स, यानी एक लार्ज मैमथ मारो तो उससे पूरा जो क्लान है या पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके लिए बहुत टाइम तक एक न्यूट्रिशनल सेफ्टी मिल जाती है. बट अब जब आइस एज खत्म हो गई, आइस एज के साथ ही जो एलेंस एंड बर्ग्समैन रूल है कि अगर कोल्ड एनवायरमेंट होगा तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे विल बी लार्ज इन साइज, स्टॉकी इन साइज. लेकिन आइस एज चला गया तो वो स्टॉकीनेस नहीं रहेगी. अब जो सिचुएशन है वो इस तरह से है, द वर्ल्ड स्टार्टेड वार्मिंग. फिर उसके साथ ही जो लार्ज गेम है वो भी खत्म हो गए. फिर वार्मिंग के साथ वेजिटेशन आ गए, और उस चेंजिंग एनवायरमेंट में आवर एंसेस्टर्स दे प्रूव्ड केपेबल. और फिर हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि वो चेंजेस सिर्फ सबसिस्टेंस पैटर्न में नहीं हुए, सिर्फ हंटिंग में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में, टूल टेक्नोलॉजी में एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी थे. सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू explore first the toolkit, the Mesolithic toolkit, which is full of microliths. Then the changes in human interaction with the environment, how agile we were and how we manifested that agility. कि किस तरह से we started a gradual journey from hunting gathering to early phase of domestication, of plant and animal domestication. फिर आगे हम वी विल टॉक अबाउट जो साइट्स हैं राजस्थान के अंदर, बागोर हो गया, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका है, उनको देखते हैं. वी विल टॉक अबाउट Mesolithic burials, about rock art, about settlement pattern, and how resilience we were and how innovative we were in aesthetics and in hunting, in subsistence patterns. So ये है. लेकिन उससे पहले अभी तक का एक ब्रीफ recap ले लेते हैं फ्रॉम द बर्थ ऑफ आवर अर्थ, एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ नो द अर्थ वाज formed around 4.6 billion years ago, where for the first few years it was dominated by volcanic activity, shallow seas, degassing events, formation of earliest environment, then ceaseless raining and the formation of water bodies, and the first life form, first microbial form in the oceans.
फिर तो जो टोटल जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू एरा, कैम्ब्रियन एंड प्री कैम्ब्रियन. सो 4.6 से लेकर 541 तक इट इज नोन एज प्री कैम्ब्रियन. देन 541 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इट इज कैम्ब्रियन वन, एक broader scale divided into two broad ages. So during that Precambrian era, simple life form here had evolved. सबके सब जो मरीन लाइफ थी. देन फिर वही जो सिंपल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, दे स्टार्टेड गिविंग वे टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. और फिर वहीं से द चेन ऑफ बायोलॉजिकल foundation, the chain of reproduction, the chain of evolution started, and that evolution, that chain, it went through various life forms, avians, reptiles, mammals, and mammals में वही फिर diversification up to primates, to hominids, and then hominins, and then humans. फिर हम आते हैं जो हमारे काम की जो चीज है, जहां से हम होमिनिड्स स्टार्ट हुए थे. So by the Cenozoic era, which is about 66 million years ago, और यही वो टाइम है Cenozoic, जो which is stand as the boundary between boundary known as KPT boundary या KPT extinction event. So ये जो चीज है इसको बोलते हैं बाउंड्री क्रिटेशियस Paleogene, the Paleocene extinction event. So इस टाइम पे around 66 million years ago, the dinosaurs, the non-avian dinosaurs, they went into extinction. और उनके extinction के साथ ही जो niche जो है, the glut that was created, it was filled by mammals. Then mammals they started dominating. फिर जब mammals dominate कर रहे हैं तो उसी mammals की branch में से एक line जो है, it diversified further into primates. फिर यही Cenozoic era है. It witnessed significant climatic fluctuation, tectonic movements, and the gradual cooling of Earth. और इसमें tectonic movements का तो आप जो जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो जानते ही हैं कि it was around 66 million years ago that this Indian plate it collided with the Eurasian plate. और उसी collision की वजह से the sediment, the Tethys Sea, it got subducted and compressed, leading to formation of a mountain chain known as the Himalayas. फिर इसी टाइम पे the gradual cooling also started, और यही cooling जो है then धीरे धीरे it went through Paleocene to Pleistocene epoch. और Pleistocene epoch में फिर हम देखते हैं कि यही वो टाइम था, यही वो स्ट्रेसफुल टाइम था जिसकी वजह से जो जितने भी मेजर चेंजेस हैं हमारे अंदर, उस प्राइमेट स्टॉक में, उस आर्बोरियल प्राइमेट स्टॉक में जितने भी चेंजेस पॉसिबल हो सकते थे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हुए. और यही होता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में कि जो रैपिड जो इवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं वो यूजुअली फॉलो दिस पैटर्न. लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेसिस, कि लॉन्ग पीरियड तक जो चेंजेस हैं, म्यूटेशंस हैं, दे आर वेरी कांस्टेंट. Changes are very constant. That's why this period is known as stasis. Then there will be a brief period of rapid changes. और वही brief period होता है क्योंकि उसी वक्त में सबसे ज्यादा stressful events होता है. The environmental pressure is there, the natural pressure is there. और उसकी वजह से उसको adapt करने के लिए जो life forms जितनी भी changes करती है, the adaptive mechanism, उनकी वजह से evolution gets a higher boost. तो जैसे मैंने आप अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो प्लेस्टोसीन ईपोक है उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से लेकर जो कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमंस तक या इवन जो मीजोलिथिक तक, ये 2.6 मिलियन ईयर्स टू 10,000 बीसी, इस शॉर्ट टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए. सो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स दे वर अगर उनमें होमिनिड्स की बात करें, बिकॉज they are the first hominid, और उनमें जो फर्स्ट चेंजेस था इट वाज द बाइपेडलिज्म. अदरवाइज बाकी जितने भी चेंजेस थे वो उस वक्त नहीं हुए थे. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द इवोल्यूशन एज अ मोज़ेक पैटर्न. कि
चीजें जो हैं, सारे जो चेंजेस जो होते हैं वे ग्रेजुअल नहीं है, कुछ जो चेंजेस हैं वो अपने अपने टाइम पे होते हैं। लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताना भूल गया, सो इट वाज द ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ अर्थ। और यहाँ पे आप देख लीजिए, these were the events, especially the gradual cooling of Earth, that eventually set the stage for or created the condition which were necessary for human evolution. So, कैसे, how gradual cooling of Earth led to the creation, led to the evolution of human-like forms? तो उसका जवाब ये है कि gradual cooling की वजह से forest declined, and when forest declined, उनके जगह पे they were replaced by open grasslands and savanna. Open grasslands and savanna. Now, our ancestors, they came up across a difficult situation क्योंकि अभी तक they were living on trees, living atop trees. They were totally into this arboreal lifestyle, leaping and hopping across branches. They were brachiating. लेकिन जैसे ही gradual cooling हुई, तो अब open grasslands हैं and they have nothing but to walk. अब दे कैन नॉट लीप अक्रॉस ट्रीज, क्योंकि ट्रीज है ही नहीं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो यहीं से जो शुरुआत हुई थी बाइपेडलिज्म की, देन उसी बाइपेडलिज्म की वजह से, उसी फर्स्ट इवोल्यूशन की वजह से, इट लेड टू द ऑनसेट ऑफ मल्टीपल इवोल्यूशन। जैसे बाइपेडलिज्म है, ठीक है, उसकी वजह से फोरामेन मैग्नम जो है इट शिफ्टेड एंटीरियरली या इन द सेंट्रल पोजीशन। फिर उसके बाद है कि व्हेन ग्रेजुअल कूलिंग की वजह से अब उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, सो दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग देयर डाइट बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से डेंटिशन के अंदर चेंज हुए। डेंटिशन की वजह से उनके साथ ये है, डाइवर्सिफिकेशन एंड डेंटिशन दोनों की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। फिर जो बाइनोक्युलर विजन था वो पहले से ही था, लेकिन बाइनोक्युलर विजन की वजह से जो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वीआईपी इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, क्योंकि अब उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको वो कर सकते हैं फॉर सर्वाइव। एंड बिकॉज ऑफ देयर अजिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, दे स्टार्टेड फॉरेजिंग। जितना फॉरेज करेंगे उतना ही, जितना घूमेंगे उतनी ही विजुअल इंफॉर्मेशन आएगी। सो इट बिकेम वेरी टफ फॉर or a small brain to process that much information, and उसके लिए our brain it needed much more energy. Much more energy means much more nutrition. और फिर हम ऑलरेडी मोबाइल थे, ऑलरेडी अजाइल थे, we diversified our food basket further. और फूड बास्केट के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से we included everything in it. इसमें टफ प्लांट्स थे तो सॉफ्ट फ्रूट्स भी थे, फिर बेरीज भी थी, और ये कह सकते हैं रूट्स भी थे, साथ में एनिमल जो प्रोटीन है वो भी आ गया। सो इन सब की वजह से जो न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ गया। न्यूट्रिशन एक अपटेक बढ़ा तो दो चीजें हो गई। फर्स्ट, ब्रेन प्रोसेसिंग, ब्रेन को जो जो मच रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मिल गई। साथ में दिस थिंग इट ऑल्सो एंश्योर्ड आवर सर्वाइवल। सो वी गॉट इनटू अ पॉजिटिव फीडबैक लूप कि हर एक चीज जो है इट ये दूसरी चीज के लिए बेहतर करी, डूइंग समथिंग बेटर, फ्यूलिंग इट इन अ बेटर पोजीशन। जैसे बाइपेडलिज्म की वजह से नाउ वी कैन चेस ऑफ एनी प्रेडेटर, वी कैन चेस ऑफ एनी स्मॉल गेम एनिमल, और इसी के साथ ही वी आवर स्पीड, आवर अजिलिटी, आवर एंड्योरेंस, उन सब की वजह से वी कैन ऑल्सो एस्केप एनी प्रेडेटर। सो एक तरह से सर्वाइवल इंश्योर हुआ। फिर जब हम इतना भाग सकते थे तो वी ऑल्सो यहाँ वहां भाग के वी गॉट द न्यूट्रिशन, द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर हियर एंड देयर, जिसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों है। उसकी वजह से अगेन एनर्जी मिली, सर्वाइवल इंश्योर हुआ। फिर साथ में फिर डेंटिशन की, आवाज डेंटिशन जो है वो भी धीरे धीरे जो मतलब एक मॉडरेट लेवल पे आता गया, जो एक जनरल डाइट के लिए होता है। हमारा जो डेंटिशन है इट इज जनरलाइज्ड। फिर इन सब की वजह से जो हमारा जो प्रोसेसिंग है, विजुअल प्रोसेसिंग है वो बढ़ गया। तो हमारे ब्रेन को जो है नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, विजुअल प्रोसेसिंग जो है वो जो इट केम इनटू अ बेटर पोजीशन। सो उसकी वजह से हमारे पास और नए आइडिया आ गए कि कहाँ से वी हैव टू गेट आवर टूल्स एंड हाउ टू कोऑर्डिनेट दी वेरियस मोटर थिंग्स,
हाउ टू थिंक, हाउ टू क्रिएट अ मेंटल टेम्पलेट। और वही समझ रहे हैं आप ना, ये जो फीडबैक लूप जो है ये पॉजिटिव था हमारे एंड में, है ना। इट वाज नॉट लाइक दैट, वी वर स्टेपिंग इनटू अ स्लिपरी स्लोप, वी वर ऑन टू अ पॉजिटिव स्लोप। फिर देखते हैं इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट, दैट इज एमरजेंस ऑफ होमिनिड्स एंड होमिनिड्स, दोनों अलग अलग है। So the evolutionary saga of human is started with hominidae. Hominidae means great apes. Great apes, it includes orangutans, gorillas, chimpanzees, and humans. Where around 6 to 7 million years ago, a key evolutionary split occurred between humans and chimpanzees. और उसके साथ ही इस की स्प्लिट के साथ ही होमिनिन्स दैट सेपरेटेड फ्रॉम द होमिनिड्स। एंड नाउ होमिनिन्स के अंदर इनमें modern human and our direct ancestor that have most of the human like features like bipedalism, binocular vision, short muzzles, and ये कह सकते हैं anteriorly placed foramen magnum, S curve spine, ठीक है, और फिर टूल किट्स, ये सब जो चीजें हैं ये होमिनिन्स में आ गई। फिर होमिनिन स्पीसीज की बात करें जो शुरुआती है, जैसे साहेलेंथ्रोपॉस चिडानेसिस अराउंड 7 मिलियन ईयर्स अगो, पॉसिबली द अर्लीस्ट बाइपेड। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपेरेंसिस लूसी, क्रूशियल एंसेस्टर हु वॉक अपराइट, जिसका हमारे पास एक पेट्रिफाइड एविडेंस भी है। एंड फिर यही ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के बाद अगेन होमो हैबिलिस known as the handyman, first ancestor, first hominin to use tool, that's why the handyman. Then homo erectus, first hominin to control fire and migrate out of Africa. तो ये आप जर्नी आप देख सकते हैं कि किस तरह से after that split our hominin stock, it moved gradually, it moved rapidly towards being human. फिर बात करता है द प्लेस्टोसीन epoch. The Pleistocene epoch from 2.6 million to 10,000, which was a dramatic era in Earth's history and often referred as the Ice Age. And मैं बहुत बार कहता हूँ the Pleistocene epoch was the evolutionary nightmare. So इससे पहले जो क्या उनको अगर हम कहें जैसे पेलियोसीन की बात करें तो उसमें भी ग्रेजुअल कूलिंग वॉज देयर, लेकिन उतनी सीवियर नहीं थी जितनी प्लेस्टोसीन epoch में थी। सो इस टाइम पे प्लेस्टोसीन की बात करें, सो देवर रिपीटेड ग्लेशियर साइकिल्स, रिपीटेड आइस एजेस, यानी कुछ टाइम पे वास्ट एरिया वाज कवर्ड अंडर स्नो, और फिर देयर वर इंटरग्लेशियल पीरियड जिसमें ये क्या कह सकते हैं वार्म कंडीशंस वर देयर। फिर अगेन आइस शीट्स, स्नो कवर्ड लैंड, फिर अगेन ये, तो ये जो ग्लेशियर साइकिल्स हैं ये चल रही थी प्लेस्टोसीन इपोक में, और उसी की वजह से एडेप्टेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आवर एंसेस्टर होमो सेपियंस, निएंडरथल्स, फ्लोरेसिएंसिस एंड डेनिसोवंस की बात कर सकते हैं, या फिर जितने आर्केक होमो सेपियंस है, ऑल ऑफ देम दे ब्रेव दोस टफ टाइम्स। और वही जो ब्रेवरी है इट लेड टू आवर सर्वाइवल, और बहुत सारे जो क्रूशियल चेंजेस हैं वो अब, तो वैसे भी इससे पहले देख ही चुके हैं हम पेलियोलिथिक में, फिर अब मीजोलिथिक में उसमें आता है। फिर इस वेब सीरीज का फोर्थ पार्ट द एमरजेंस ऑफ होमो सेपियंस, द सोल सर्वाइवर। फिर जो मॉडर्न होमो सेपियंस हैं दे इवॉल्व अराउंड 300,000 ईयर्स अगो इन अफ्रीका, और उसके लिए एविडेंस जो है लाइक जेबल इरोड इन मोरक्को। फिर इस टाइम तक होमो सेपियंस दे वर क्वाइट अहेड ऑफ देयर टाइम, जितने भी उनके साथ में कंटेम्पररीज थे उनसे ज्यादा ही आगे थे, बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी, एडवांस टूल यूज, सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर when they started migrating out of Africa around 100 to 70,000 years ago, they spread across various parts of the world. Around 40,000 they spread into Europe, और उनके आते ही the Neanderthal went into extinction. फिर by 15,000, 10,000 they reached everywhere, including the Americas. और ऑस्ट्रेलिया में भी they reached around 50,000 BC, 50,000 years ago. उसके एविडेंस भी है हमारे पास, मुंगो मैन, मुंगो लेडी। फिर अमेरिकाज में वाई द बेरिंग ब्रिज दे रीच अराउंड 15,000।
वैसे ये सब आपके एक जनरल ओवरव्यू के लिए है। फिर द फिफ्थ स्टेज, द पेलियोलिथिक एज। So the Paleolithic age, it often coincides with the Pleistocene epoch, 2.6 million to 10,000 BC. And this Paleolithic, it consists of three ages. Now, जो Pleistocene जो time है, it is a geological division of Earth's history, whereas Paleolithic time, it is about the division of humans' history that is based on the use of stone tools, on the quality of stone tools. So ये जो इनका ये दोनों coincide कर रहे हैं, it is merely a coincidence. Other than that, Paleolithic में और Pleistocene epoch में दोनों अलग अलग हैं। फिर Paleolithic में जो lower Paleolithic है, the oldest age, oldest Paleolithic, there were stone tools such as Oldowan and Acheulean tools, which were associated with Homo habilis and Homo erectus respectively. तो ओल्ड वन जो है बहुत ही बेसिक टूल्स हैं, बहुत ही क्रूड टूल्स हैं, जिसमें एक कोर को एक हैमर स्टोन से स्ट्राइक करके चिप्स निकले, जो फ्लेक्स निकले, वो उन्हीं से टूल। फिर अशूलियन गुड अपग्रेडेशन कि वही टूल्स जो थे, फर्स्ट जो पैटर्न जो है परकशन का पैटर्न है या जो टूल मेकिंग पैटर्न है, इट बिकेम ग्रेजुअली अपडेटेड। फिर जो फ्लेक्स जो थे उनको और थोड़ा पॉलिश किया गया। सो यही जो डिस्टिंक्शन है दोनों टूल इंडस्ट्री में, और दे वर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट होमिनिन स्टॉक। फिर मिडिल पीलियोलिथिक की बात करते हैं। सो दिस पीरियड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक टूल्स एंड मोस्टीरियन कल्चर। मोस्टीरियन कल्चर मींस जिस साइड से मिला है, और यहाँ पे भी अगेन दे वर फर्दर अपग्रेडेड देन द अशूलियन टूल्स, कि इस टाइम तक जो टूल्स जो थे दे बिकेम बाइफेशियल, फर्दर पॉलिश्ड, लवेलुआ टेक्निक यूज कर रहे हैं। लवेलुआ टेक्निक जिसके अंदर एक कोर प्रिपेयर की इस तरह से ड्रम लाइक कोर, और उसी ड्रम लाइक कोर में इस तरह से विद सॉलिड मोटर कोऑर्डिनेशन एंड हैविंग अ मेंटल टेम्पलेट कीपिंग इन माइंड, यहां से इन फ्लेक्स निकाल के उन्हीं फ्लेक को डिफरेंट हेफ्ट से, वुडन या बोन हेफ्ट से उनको यूज करके दीज टूल्स वर यूज्ड। और इसमें जानते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप के टूल्स बनाए गए। सो ये भी एक काफी अच्छी टेक्निक थी और अपग्रेडेशन था ओल्ड वन अशूलियन से। और दिस टेक्निक मोस्टीरियन कल्चर इट वाज एसोसिएटेड विद द निएंडरथल्स। फिर द अपर पैलियोलिथिक, इस टाइम पे सिर्फ होमोसेपियंस बचे, क्योंकि this upper Paleolithic it starts around 40,000 BC, और 40,000 BC तक Homo sapiens they reached everywhere, और यूरोप तक तो पहुंच ही गए थे। और उसके उसी टाइम पे Neanderthal also went into extinction। फिर Homo sapiens के साथ they were blade tools, cave art, burials and early spirituality। जो blade tools हैं उसमें ये करते हैं कि एक प्रिज्मेटिक कोर यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कोर जिसके अंदर जो सॉफ्ट स्टोन से बनी होती है, स्पेशल लाइक चर्ट हो गया या रेडियोलाइट हो गया, सॉफ्ट स्टोन, चर्ट, रेडियोलाइट, इन सब से अब इन्हीं जो प्रिज्मेटिक कोर जो है इन्हीं में से स्ट्राइक कर करके ये जो पॉलिश्ड एंड शार्प फ्लेक्स निकालते थे, उन्हीं को फर्दर पॉलिश करके दे वर हेफ्टेड ऑन टू either bone or wood or even stone tools, और फिर उनको यूज करते हैं लाइक कह सकते हैं स्पेयर के तरीके, स्पेयर हो गया, या फिर फॉर क्लीनिंग हाइड या फॉर बरीन्स हो गया। सो इन इस तरह के जो अपर पैलियोलिथिक तक तो टूल मेकिंग इंडस्ट्री में काफी एडवांसमेंट हो गया। फिर अपर पैलियोलिथिक में बरियल्स के डायरेक्ट एविडेंस मिलने लग गए, रिचुअलाइज्ड बरियल। तो रिचुअलाइज्ड बरियल वाज देयर, इट मींस सोसाइटी वाज living in a cohesion, तो a kind of proto society was there। फिर ये तीनों जो हैं आर्ट फॉर्म, they also started defining human as a different kind of species, something that stand us apart from other animal species। Okay, we were not just living hand to mouth, we were just not living for physical fulfillment or sensory fulfillment। They were higher pleasures such as spirituality, cave art, burial,
we look after our elders, we look after the sick one, we had a social organization, और यहीं से फिर hierarchies वो सब start हो गए. And the sixth chapter, the last glacial maximum and the climatic shift, and which paved the way for the Mesolithic. So around 26,500 to 19,000 BCE, the Earth experienced the severest, the coldest period known as the last glacial maximum. और उस वक्त पे large areas were covered in ice, sea levels were much lower, क्योंकि ice shrink हो जाती है तो जो sea levels हैं वो lower हो जाते हैं. और थर्मल एक्सपेंशन जो आप सुनते ही हैं, जो आज क्लाइमेट चेंज के बारे में लॉट ऑफ पीपल fear this coastal erosion. So someone might ask कि climate change की वजह से जो coastal areas जो हैं, why would they erode, or why would the people or the coastal area would submerge if if there is a climate change or global warming? The simple thing is there, thermal expansion. So thermal expansion इसमें क्या होता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर है, स्पेशली द लिक्विड फॉर्म. तो लिक्विड फॉर्म में आप जानते हैं जो पार्टिकल्स जो हैं दे आर एट सम डिस्टेंट एंड दे आर फ्लोटिंग, नॉट लाइक द सॉलिड लेटिस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं. जैसे ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स stay in a very close organization in a lattice like structure. That's why it is solid and it is often unbreakable, unmalleable, unstretchable. लेकिन liquid जो है, कि liquid को we can give it any form and it takes the form of any container in which it is held. क्योंकि इसके जो molecules हैं जो उनकी दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट they are free floating and then they are at some irregular distance. फिर यही जो है लिक्विड को, स्पेशली वाटर को, जब उस पर टेम्परेचर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिसको केमिस्ट्री में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब एक्सटर्नल हीट इस पे अप्लाई होगी देन दीज पार्टिकल दे विल एक्सपैंड फर्दर, और उसकी वजह से जो लिक्विड मीडियम है इट विल कवर अप मोर एरिया. सो यही चीज जो है वो ओशंस को लेकर है कि इफ द अर्थ्स टेम्परेचर रीच अ क्रिटिकल लिमिट, तो उसकी वजह से जो वाटर है इट विल थर्मली एक्सपैंड, और उस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो कोस्टल एरियाज जो है दे विल सबमर्ज. सो दिस इज द थिंग. और यही जो ये कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन का थर्मल जो ऑपोजिट है वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है. यानी इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, so these free floating particles, the free floating molecules, they will freeze and start to start in an inner journey in which they will try to come up in the proximity of other molecule. I repeat it again, when you lower the temperature, so what will happen, जो ये free floating molecules हैं they will start towards an inner journey. Inner journey means other molecules के proximity, other molecules के पास में जाने की कोशिश करेंगे. So that's why कोई भी चीज आप freeze करते हैं तो it contracts, it reduces in size. So ये है. Then when this peak cold, the peak ice age was over, उसके बाद 20,000 BC में the world began to warm. So ये एक यूजुअल साइक्लिकल फिनोमिना है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. यू कैन इवन गिव यू अ फिलोसॉफिकल टर्म कि लाइफ में हर एक पीक के बाद जब भी पीक हो जाता है देन इट गोज टूवर्ड्स इट्स ट्रफ. इसी तरह से मूव करते हैं साइनसॉइड वे में या साइन वेव में. लाइफ भी इसी तरह से मूव करती है कि जब भी किसी चीज की कोई पीक आ जाती है देन इट मूव्स डाउनवर्ड. यही सेम जो है आपके प्रिपरेशन में भी होता है कि सम डे यू विल प्रिपेयर लाइक हेल, पूरा दिन जो है उसमें से 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट विल बी योर पीक टाइम. फिर उसके बाद वो पीक टाइम मेंटेन नहीं हो सकता, दैट कैन नेवर बी मेंटेन इनफाइनाइटली. फिर वो धीरे धीरे वापस रिड्यूस होगा एंड देन फिर धीरे धीरे मोमेंटम बिल्डअप होगा. यही चीज जो है
वो बाकी फिनोमिना में भी है, जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, लाइक द डॉन जो है, जो सुबह है, उसके पहले का जो टाइम होता है, इट इज द डार्केस्ट वन। और यही लाइफ के बारे में भी बोलते हैं कि व्हेन पीपल समटाइम फील लो, डिप्रेस्ड, व्हेन दे आर यू नो क्वाइट hopeless about the severity of the situation in their life, कि जिंदगी इतनी ऐसी हो गई है, like they feel like they are in the darkest point of in their life. So उसी darkest point के बाद ही डाउन होता है, जो कि लाइफ का एक सिंपल फिनोमिना है, बिकॉज darkest darkest पीरियड ऑफ डे के बाद ही डाउन होता है। यही सेम जो है यहाँ पे, जो पीक ग्लेशियल जो था, जो पीक आइस एज थी, उसी के बाद से वर्ल्ड स्टार्टेड वार्मिंग। यानी एक और चीज है, यानी अगर ये पीक के बाद दिस इज द डाउनवर्ड जर्नी व्हेन वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू वार्म, यानी ये चीज फिर से होगी, आइस एज फिर से आएगी। तो यस, आइस एज आर साइक्लिकल। सो ये सिचुएशन फिर से, द वर्ल्ड विल अगेन face this situation. So again, 20,000 years ago, the glaciers melted, coastline changed, and megafauna like mammoths, giant deer, they began to go extinct due to climate change and overhunting. So you know what this means. जैसे एलेंस एंड बर्गमैन रूल जो आप में से बहुत पढ़ते हैं, कि if the environment is cold, then the organisms, the animal form, the life form that inhabit it will be giant in size or will have lot of body fat. Body fat because इस बॉडी फैट की वजह से हीट प्रिजर्व होगी। सो इन शॉर्ट, एलन बर्गमैन रूल के अकॉर्डिंग, कोल्ड में जो फैटी ऑब्जेक्ट्स होंगे, फैटी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वही सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। सो इसी वजह से आइस एजेस में मैमथ्स थे, जाइंट डियर्स थे, जितने जाइंट फॉर्म फैटी ऑर्गेनिजम्स थे। बट जैसे ही क्लाइमेट स्टार्टेड वार्मिंग, यही जो है धीरे धीरे कम होने लगे। सो इसी के साथ ही एक और एनवायरमेंटल ट्रांजिशन वाज देयर, एनवायरमेंटल प्रेशर वाज देयर, कि उससे पहले तो दीज मैमथ्स, दीज जाइंट डियर्स, जाइंट ऑर्गेनिजम्स, दे वर लाइक यू नो दिस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। एक तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थी कि इनको हंट करके पूरे क्लान को बचा सकता है, इतना खाना मिल जाएगा। बट अब जब एनवायरमेंट वाज ट्रांजिशनिंग, जब ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अब क्या? लेकिन जो ह्यूमन है, it has the spatial feature, the something special about it, the agility, the cognitive ability, और उसके बेसिस पे we have brave unimaginable time. So ये time भी we found something. So by the 10,000 BC, the Ice Age ended, and that marked the end of Upper Paleolithic and the beginning of Mesolithic, Middle Stone Age. So ये background आपको बता दिया। The large animal species disappeared, forest expanded, and now जो human है, they could not depend solely on hunting megafauna. Megafauna means large animal species. So now they have again to prove this, that they were the agile and cognitive alert species. So यहाँ पे humans started experimenting with fishing, trapping smaller animal, and collecting white grains and using new microlithic tools. So ये सब adaptation है। So it was not like that कि जो robust australopithecines थे, कि जिन्होंने अपने आप को adapt नहीं किया, तो they went into extinction. So we were not as stubborn. अगर environment change हुआ, then we found that we changed our toolkit. We started experimenting with different things, कि megafauna नहीं है, trees और water bodies आ गई, then we started fishing. Then large organism नहीं है, we started hunting smaller animals. Then जो जो क्या क्लाइमेट की वजह से जो vegetation आई, we started growing them, we started domesticating them. और फिर इन सब के लिए जो ओल्डर टूल्स जो थे, जो सब लार्ज मेगाफोना को हंट करने के लिए थे, वो भी हमने चेंज कर दिया, एंड वी शिफ्टेड टुवर्ड्स न्यू टूल किट, द माइक्रोलिथिक टूल्स, टाइनी कंपोजिट टूल्स व्हिच कैन बी फिक्स्ड ऑन, व्हिच कैन बी hefted on wood and bone. So यहाँ पे these changes
were, you know, not only the the signs of our agility and cognitive abilities, but they also provided a gradual shift towards Neolithic age, the age of sedentism and early agriculture. सो ये सब है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं उसमें मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। लाइक आई हैव टॉट फिजिकल क्लासेस फॉर 6 to 7 years, एंड जब वो सामने होते हैं, व्हेन यू नो, जैसे जो क्रिस काइल की एक लाइन है कि आई एम गुड विद समथिंग व्हेन इट इज ब्रीदिंग। सो वैसे ही ये मेरे साथ भी सीन है कि मैंने 6 7 years जो है फिजिकल क्लासेस ली है, तो मुझे जो है स्टूडेंट से क्यों मिलते रहते हैं। और वो चीज एक स्टैटिक चीज नहीं होती, समथिंग दैट इज लाइवली, समथिंग दैट इज डायनामिक। आई गेट अ लॉट ऑफ hints, आई नो एग्जिस्ट इन देयर एटमॉस्फियर। बट ये जो ऑनलाइन वाला आ गया है, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये गलत है या फिर बुरा है, बट समथिंग इज लॉस्ट हियर, समथिंग यू नो, द डायनामिक्स हैव बीन लॉस्ट, द लाइवलीनेस जो है दैट इज लॉस्ट, द क्यूज आर लॉस्ट। सो इसी की वजह से समटाइम मैं भी बात करते करते आई यू नो आई लूज द वर्ड्स, ब्लैंक हो जाता हूँ कि वर्ड्स आर नॉट कमिंग। एंड वर्ड्स जो इससे पहले जो है आई यूज टू टेक क्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स। इट्स नॉट दैट वो मुझे वर्ड्स बताते थे, बट वो सामने जो चीजें होती है, व्हेन यू नो आपके सामने 200 300 स्टूडेंट हैं और उनसे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाता है। बट यहाँ पे एक स्क्रीन है और उसी की स्क्रीन के बेसिस पे ही जो जो कभी कभी ब्लैंक हो जाता हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। फिर हम बढ़ते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस इन द लेट अपो पैलियोलिथिक। So I have already briefed you about the basics that after the end of Pleistocene epoch, the last ice age was concluded around 10,000 BCE, और उसके बाद temperature started rising gradually. Massive glaciers they melted, and now because of the thawing of ice, the sea levels and they rose, and उसके साथ ही न्यू इकोसिस्टम लाइक वेटलैंड्स, लेक्स, टेम्परेट फॉरेस्ट। सो एक तरह से वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन दोनों अपर पैलियोलिथिक के बाद दे स्टार्टेड अपीयरिंग। फिर जो मेगाफोना है वो भी डिसअपियर हो गए। सो ह्यूमन जो है दे हैड टू शिफ्ट, क्योंकि उससे पहले जो ह्यूमन जो थे उनके पास लार्ज बॉडीज थी, woolly mammoths, mastodons, woolly rhinoceros, giant elks, और जितने भी giant organisms थे that are typical of an tundra climate। अब वो जो है वही वो सब they started becoming rare, और उसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी जो थी it came under threat। So यहाँ पे our ancestor they show this adaptation जिसकी वजह से we have survived this much long। और वही adaptation यहाँ पे our ancestor they were you know quite thoughtful and intelligent to look for the solution rather than crying over problems। क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, so they did not worry, they did not cry over कि ऐसा चेंज कैसे हो गया है, instead they look for the solution। और आज भी even the exam you are preparing for, it will look for that solution oriented mind, that mind with the critical thinking, that mind that can think out of the box। फिर वापस हम बात करते हैं कि इस टाइम पे the factors that contributed to the extinction of megafauna। So first, climate stress, क्योंकि when the habitat changed from open grassland to forest। So ये जो है ये रिवर्स है। प्लेस्टोसीन और उसके पहले के जो एरास थे उसमें ग्रेजुअल कूलिंग वॉज देयर, जिसमें फॉरेस्ट चेंज टू ओपन ग्रासलैंड। और यही जो चेंज था फॉरेस्ट टू ओपन ग्रासलैंड, इट प्रोवाइडेड द लीवे फॉर बाइपेडलिज्म। लेकिन यहाँ पे जो एट द एंड ऑफ अपर पैलियोलिथिक जो चेंज था इट वाज अगेन रिवर्स, जो मैंने कहा ना कि लाइफ साइक्लिकल है। तो यहाँ पे ओपन ग्रासलैंड चेंज टू फॉरेस्ट। सो इन सब एनवायरमेंट में, इन सब एटमॉस्फेयर में द लार्ज एनिमल दे स्ट्रगल टू अडाप्ट, क्योंकि देयर बॉडीज दे कुड नॉट टॉलरेट दिस मच हीट। लार्ज जाइंट बॉडीज हैं विद है ना द ओवर साइज फर। ऐसे में
the excessive heat accumulation will be there, और उस heat accumulation में जो giant species जो हैं they cannot survive, और they cannot survive तो reproduction नहीं होगा, तो फिर evolution नहीं होगा, और फिर species transmission भी नहीं होगा. So first climatic stress was there and overhunting. So उस टाइम तक जो होमो सेपियंस थे, द सोल सर्वाइवर, उनके पास और एडवांस टूल किट आ गया, और उनके साथ ही फिर उन सब मेगाफोना को ओवरहंट करके उनको पहले ही एक्सटिंक्शन की बाउंड्री तक पहुंचा दिया. फिर इस चेंजेस के साथ अब बिग गेम हंटिंग वाज रूल्ड आउट. अब उनको नए फूड सोर्सेस ढूंढने थे. सो यहाँ पे जो एट द बिगिनिंग ऑफ मेसोलिथिक जो होमो सेपियंस हैं, फर्स्ट दे चेंज देयर सब्सिस्टेंस पैटर्न, या फिर कह सकते हैं first diversification of food basket and the diversification of subsistence technology. So पहले तो they skipped the megafauna, और जो diverted their attention towards small games, deer, wild boar, hares, birds. फिर फिशिंग की अगर वाटर बॉडीज आ गई है और उसके अंदर बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स हैं, सो ऑल दोज मरीन एनिमल्स दे कैन बी ईटन फॉर द न्यूट्रिशनल अपटेक. और फिर उसके बाद जो वेजिटेशन है वो बढ़ रही है, तो फिर उनका भी बेस्ट यूज किया. नट्स, बेरीज, रूट्स, एडिबल ग्रासेस, ऑल ऑफ देम दे फिल द डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट ऑफ होमो सेपियंस ऑफ दैट टाइम. फिर यह है कि this mixed subsistence economy, this mixed diversification pattern, it was not only the survival strategy, but it also led the future groundwork for agriculture, groundwork for Neolithic, for sedentism, and for the society that we see today. Where regional adaptations were there, the regional adaptation and cultural flexibility, flexibility, adaptation and agility, all were the hallmarks of Homo sapiens. ये हम पहले ही जानते हैं, बट यहाँ पे ये सब जो टूल किट्स हैं, ये सब क्वालिटीज हैं, दे वर टेस्टेड टू देयर कोर. सो जहाँ पे फॉरेस्ट एक्सपैंड हुए, सच एज यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, the Homo sapiens human groups they developed forest adapted lifestyle. और जो कोस्टल एरियाज में रह रहे थे, तो they became relying on marine and estuarine ecosystems. So this flexibility was there. और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे Taforal in North Africa and Ohalo in the Levant. दोनों ही जो है the evidence of broad spectrum subsistence. Broad spectrum means forest plus marine resources. फिर the transition to the Mesolithic. तो यहाँ पे Mesolithic आते आते ही the human started settling in semi-permanent habitats, जो signify करता है कि the human जो है they started shifting towards sedentism. Then they started developing microlithic toolkits which were suitable for newer changes. जो earlier toolkit था, it was got rid of. Then they started engaging in intensive foraging and seasonal exploitation of diverse resources. So यही है जो overall जो patterns हैं, all of them they show these three things: agility, flexibility, and adaptation, whichever name you want to give it. And all of them they became helpful because of the cognitive revolution that started with the brain expansion in Homo habilis. फिर यही जो चेंजेस हैं, सेमी परमानेंट हैबिटाट्स, द माइक्रोलिथिक टूल किट्स एंड इंटेंसिव फॉरेजिंग. ये इंटेंसिव फॉरेजिंग मीन्स जो है, इससे पहले जो ओपन ग्रासलैंड्स थे तो उसमें फॉरेजिंग जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब जगह जो है वो जो पैचेस जो थे वो यूनिफॉर्म पैचेस थे, यूनिफॉर्म पैचेस ऑफ वेजिटेशन, लार्ज बुशेस थी, लार्ज ग्रासेस थी, फॉरेजिंग की जरूरत ही नहीं. लेकिन जैसे ही क्लाइमेट वार्म हुआ, अब वेजिटेशन जो है दे शिफ्टेड टुवर्ड्स हाइब्रिड, या कह सकते हैं डाइवर्स पैटर्न. मल्टीट्यूड ऑफ वेजिटेशन वाज देयर. उनमें वाइल्ड बेरीज भी थी, ठीक है, ट्यूबर्स भी थी, रूट्स भी थी, डिफरेंट फ्रूट्स भी थे, डिफरेंट एडिबल प्लांट्स भी थे. तो उसके लिए इंटेंसिव फॉरेजिंग became a necessity. And then seasonal exploitation,
तो सीजनल एक्सप्लॉयटेशन का भी उनको अब समझ में आ गया, बिकॉज यही सीजनल एक्सप्लॉयटेशन है दैट लेटर गिव वे टू द आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि अब जो होमोसेपियंस है उनको पता चल गया है कि जो जो वेजिटेशंस है, जो न्यू वेजिटेशंस है, दे आर साइक्लिकल। जैसे कहें हम व्हीट की बात करें या राइस की बात करें, तो ये जानते हैं कि ये जो हाई रेनफॉल इवेंट के बाद ही राइस होती है, और फिर जो व्हीट है ये भी स्पेसिफिक टेम्परेचर और क्लाइमेट में होती है। तो ये जो सीजनल वाली जो चीज है, ये सब समझ में आते ही जो न्यूलिथिक के टाइम में एग्रीकल्चर बिकेम अ रियलिटी। लेकिन उसका जो ग्राउंड वर्क जो है वो मेसोलिथिक में ही हुआ। फिर बात करते हैं द टूल किट की। सो मेसोलिथिक में द माइक्रोलिथिक रिवॉल्यूशन वाज देयर। द टूल्स वर स्मॉल but the impact was big. So here the most defining characteristic of this era was the development of microliths, which are tiny stone blades of flakes, which typically 1 to 5 centimeter in length, and जो जो चिपिंग या जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्निक है, इट वाज प्रेशर फ्लेकिंग और ब्लेड प्रोडक्शन। दोनों ही, प्रेशर फ्लेकिंग और ब्लेड प्रोडक्शन दोनों में भी ये होता है कि अ कोर इज देयर एंड देयर इज अ हैमर स्टोन। ये कोर एंड हैमर स्टोन and with precision and other mechanical principle. Precision or the mechanical principle with the knowledge of acute angles and a mental template and a motor coordination. ये जो पांच चीजें हैं, precision of strike, then mechanical principle, what kind of strike, how severe strike, or at what angle will yield this kind of flake, वो mechanical principle. then the idea of acute angle, कि इस एंगल पे इस तरह से स्ट्राइक करने से this kind of chip will be flake off, will be removed off. then mental template, पहले एक आइडिया कि किस तरह से होना चाहिए, एंड फाइनली द मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अब employed these 5 factors I employed in those production techniques, चाहे वो प्रेशर फ्लेकिंग हो या ब्लेड प्रोडक्शन हो, और दोनों ही सिमिलर है। बट प्रेशर फ्लेकिंग के अंदर यही कोर को स्ट्राइक किया जाता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे टू रिमूव द फ्लेक। लेकिन ब्लेड प्रोडक्शन में द थिंग इज कि जो स्टोन जो होता है इट इज सॉफ्ट वन, एंड देन जो हैमर स्टोन होता है जिससे स्ट्राइक करते हैं, ये भी सॉफ्ट परकशन टेक्निक से डेवलप होता है। तो हैमर स्टोन जो होगा ये भी एक लार्ज स्टोन नहीं होगा, कोई सॉफ्ट स्टोन होगा या बोन या वुड होगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। फिर these tools they are embedded or hafted on wooden or bone shaft with natural adhesives like resin or sinew, जो अपपैलियोलिथिक में भी होता था। सो इस वजह से जो न्यू टूल किट जो है, it provided a diverse portfolio such as spear for large game hunting, arrows for precision, harpoons for fishing in lakes, and daggers or knives for cutting, skinning, and food preservation. फिर अब to exploit a wider variety of resources, not just hunting but fishing, gathering, foraging, or even early plant management, अब उनको specialized tools की जरूरत थी, such as scrapers for cleaning animal hides, drills for boring holes in wood, for grinding stones, beginning of grain processing, and edges and chisels for agricultural work. So ये जो है इस टूल किट में, मेसोलिथिक टूल्स के में ये चीजें भी और जुड़ गई, जो आप देख सकते हैं। ये वाली जो है, ये सारे के सारे दे वर हंटिंग बेस्ड, बट दीज दे आर कस्टमाइज्ड टूल्स on the basis of agriculture plus fishing. So this diversification, it reflects a more flexible and responsible lifestyle, which was the hallmark of Mesolithic people. फिर बात करते हैं फिशिंग एंड एक्वाटिक इनोवेशंस। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से द वार्मिंग क्लाइमेट paved the way for water bodies, various kind of water bodies, rivers, lake, wetlands, and all of them became important food sources. So जो Mesolithic Homo sapiens हैं, they also learned this in their way, and
developed some tools to exploit these resources. So fishing hooks, which were made up of bone, antler or shells, fishing hooks जिनसे trap करते हैं. फिर fishing nets and traps were also, you know, made, even though they were rarely preserved, but some, indirect evidence they suggest that they were in use. Then harpoons and spear with microlithic barbs, they were, all of these tools, they were, specially crafted or customized for aquatic lifestyle. So यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि it was a shift towards semi-sedentary lifestyle, क्योंकि यहाँ पे to exploit the fishing resources, people had to, stay longer at one place. क्योंकि वो आप जानते हैं कि वाटर बॉडीज जो होती है, छोटी से छोटी वाटर बॉडी पॉन्ड भी है, वो भी इतनी होती है कि कुछ दिन के लिए तो रुकना पड़ेगा टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज. और यही जो लार्ज वाटर बॉडीज की बात करें, जैसे लेक्स की हो गया, वेटलैंड्स की हो गया, उनमें तो फिर एनी काइंड ऑफ ग्रुप, खासकर उस टाइम की बात कर रहे हैं 10,000 BC, 9,000 BC, तो जो लार्ज ग्रुप है इट हैड टू स्टे लॉन्गर. सो सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे डेवलप हुई, और वही सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल लेटर pave the way for the Neolithic sedentary lifestyle. फिर the invention of bow and arrow, a game changer. तो Paleolithic में आपने अतलातल के बारे में सुना होगा. अतलातल स्पेयर थ्रो. तो bow and arrow के पहले जो आपको Paleolithic Homo sapiens हैं, they use atlatls or spear thrower, जिसमें spears जो हैं they were attached to a thrower, जैसे पुलिंग यूनिट, जिससे एक तरह से इट एक्सटेंड्स द लेंथ ऑफ ह्यूमन थ्रो. एंड एथलेटल्स यूज ऑन वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट ऑफ बो एंड एरो, कि बो एंड एरो की तरह समथिंग, इफ सम प्रिसिजन वेपन, इफ इट इज attached to any bow, and if it is released with some pressure, so it will traverse some distance in a projectile motion. So in the same way, atlatl जो है ये कह सकते हैं कि a crude form of bow and arrow. ये आपको पैलियोलिथिक का. लेकिन मीजोलिथिक में the atlatls जो आप ये समझ सकते हैं कि कितने इनोवेटिव थे. बोले ऐसा नहीं है कि जो होमोसेपियंस जो है वो मॉडर्न एज के अंदर ही इतना इंटेलिजेंट एंड इनोवेटिव था. उसमें भी आप पहले, इसमें भी आप देख सकते हैं द प्री हिस्टोरिक टाइम में कि सिर्फ कुछ हजार साल में हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे वर्क विद अ लॉट ऑफ आइडियाज. क्योंकि एथलेटल से बो एंड एरो ये कोई रातों रात नहीं बना होगा, और ये सिर्फ अपने आप भी नहीं बना होगा. तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, बहुत सारे मेंटल टेम्पलेट्स होंगे, बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना, थॉटफुल नाइट्स होगी, तब जाके ये इनोवेशन आया होगा. बट वन वे और अनदर, the bow and arrow, it was a game changer, especially for changing environment, especially for targeting small and agile animal in the forest and open grasslands. Then the material innovation and resource use. So the Mesolithic people have, because of the changing lifestyle, because of the changing climatic pattern, and the ever-changing vegetation, ever-changing surrounding, they broadened the range of material they started exploiting. So अब जो है, the broad reliance on stone, it was lowered down, it was reduced, or जो much emphasis it was given to other resources such as bone, antler and ivory, which were carved into tools and decorative objects. Then wood, जो भी specially काम आने लग गया, especially hefting the stone microliths, and जो natural adhesives हैं, like जो birch tar है, जो plant resin है, जो पेड़ों की जो छाल से जो गोंद निकलता है, जो एडेसिव है, वो उसको भी यूज करने लग गए फॉर हेफ्टिंग, फॉर फिक्सिंग स्टोन इन, और फिर रिपेयरिंग समथिंग, और हेफ्टिंग हैंडल्स, इन सब के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करने लग गए. फिर द सेटलमेंट एंड ट्रांजिशन. सो ये जो थीम है बार बार आ रही है कि जो अर्लियर पेलियोलिथिक एरा जो है, द ह्यूमन दे वर मोस्टली नोमैडिक हंटर गैदरर,
किसी एक जगह पे सेटल नहीं थे. दे वर मोबाइल, दे वर nomadic. But when the climate warmed and the Holocene epoch started, so Holocene epoch अभी भी चल रहा है, जिसको हम आज एंथ्रोपोसीन बोलते हैं. दिस इपोक इज, जो साइंटिफिकली इट इज नोन एज होलोसीन, दैट स्टार्टेड अराउंड 11,700 years ago. और ये जो है होलोसीन, इट इज अ वार्म पीरियड. सो यहाँ पे एनवायरमेंट बिकेम स्टेबल, फिर फॉरेस्ट, लेक्स, वाटर बॉडीज, न्यू इकोसिस्टम, न्यू काइंड ऑफ वेजिटेशन, और ये सब बढ़ने लग गए. सो इस वजह से जो ह्यूमन ग्रुप्स जो थे, दे स्टार्टेड रिटर्निंग टू द सेम places seasonally, क्योंकि the bounties, the resources, they were abundant. और जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज थे वो भी रिलायबल थे. और अभी इससे पहले आपको बताया एक्वेटिक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में कि एक्वेटिक बॉडीज जो होती है वो उस वक्त में अराउंड 10,000 BC, 9,000 BC, उस वक्त उनके अंदर इतनी तो मरीन ऑर्गेनिज्म थे कि एक सिंपल ग्रुप, बैंड ऑफ 100, 500, इवन 1,000 पीपल, वो एक साथ उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे. सो इस तरह से सेमी परमानेंट और सेमी सिडेंटरी सेटलमेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. फिर ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है, वी हैव एविडेंस ऑफ द सेटल लाइफ कि दे वर pits which were dug into ground which might have been used for storage like nuts, seeds and meats. We have found evidence of huts or fireplaces, जो चूल्हे होते हैं, cooking areas. Then middens, waste dumps were there, which hold large accumulation of animal bones, shells and food waste, which again, जो waste dump तभी create होते हैं when a particular site is repeatedly used. ये तो एक कॉमन चीज, सेंस की बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को एक ही बार यूज कर रहे हैं, तो एक साइट को एक ही बार या दो बार यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट डंप्स तो जो क्रिएट नहीं होंगे. फिर स्टोन एंड वुड पोस्ट होल्स. तो जो वुड के अंदर दो स्ट्रक्चर्स, लार्ज वुड है या स्टोन के अंदर अगर होल क्रिएट करके उनके अंदर अगर एक स्कैफोल्ड जैसे अगर कोई चीज तैयार करें जिसमें पोल जो है, जैसे ये स्टोन हो, जो पुराने टाइम में जो घर बनते थे, जो जो उनकी जो बेसिक पिलर्स हैं उनमें इस तरह का एक स्टोन होता. ये जो सेंट्रल मिडिल होल है, और इसमें फिर जो बड़े बड़े पिलर्स जो थे, दे वर अटैच्ड टू लैच ऑन टू इट एंड दे वर इरेक्टेड टू होल्ड द थैचेड रूफ इन प्लेस. सो इस तरह से यही चार कॉर्नर्स के अंदर इस तरह से क्रिएट करके एक हट क्रिएट की जाती थी. ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और मैं भी जो बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही प्रिमिटिव चीज है, प्री हिस्टोरिक चीज है. सो ऐसे एविडेंस जो मिले हैं, तो उस वो भी जो है, दे सजेस्ट दैट ये जो स्टोन्स हैं, दे वर यूज्ड टू लैच द वुड वर्क ऑन इट. फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स, द स्टार कार इन इंग्लैंड व्हिच इज डेटेड अराउंड 9,000 BC, एंड हियर वी हैव एविडेंस ऑफ वुडन प्लेटफॉर्म्स, वर्क टिम्बर एंड एनिमल रिमेन्स व्हिच सजेस्ट लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन. सो यू कैन इमेजिन इट. और ये हमारे पास इतना एनालिसिस तो हम, कॉमन सेंस तो हम खुद भी रख सकते हैं. एंड देन Lepanski Vir in Serbia, it is a complex riverine settlement which semi-permanent houses and ritual places. So again, ये यहाँ पे एनालिसिस ये अंदाजा लगा सकते हैं कि by Mesolithic period, the Homo sapien started giving a try to sedentism, started staying at one place for long time. फिर Mesolithic was also the age when Homo sapiens of that time experimented with food production, and that was the necessity. क्योंकि अब hunting जो है वो अकेला न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैन नॉट एंश्योर, न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी एंश्योर नहीं कर सकता. उसके लिए जो फूड बास्केट डाइवर्सिफिकेशन वाज नेसेसरी. सो ये भी हमारे पास एविडेंस है कि उस वक्त के जो होमो सेपियंस है, they started experimenting with plant cultivation. So it is believed that people of the time started to gather and manage wild cereals like barley, wheat and oats. और तभी उनको सीजनैलिटी पता चली. जो सीजनल ऑक्यूपेशन है ये भी उसी से पता चलता है. और इवन यही चीज जो है, हम इसका जो
कंपैरिजन है जो है वो हम बहुत सारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में उनमें भी देख सकते हैं कि अभी भी वो जो पोस्ट रेन टाइम होता है, पोस्ट मॉनसूनल टाइम होता है, वो ट्राइब जो है दे सो देयर सीड्स by broadcasting it and then wait till the produce is ripe, और फिर वो अपने उसी प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करके देन दे मूव टुवर्ड्स देयर मोबाइल एंड हंटिंग लाइफस्टाइल। सो ये जो सैमी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके एविडेंस आज भी बहुत सारी सोसाइटीज में है। सो एक एनालॉजी, एक कंपैरिजन हमें वहां से भी मिलता है। फिर जितने भी जो अदर एविडेंसेस हैं उनमें जो जो ये साइट्स हैं, जो ये हैबिटेशन साइट्स हैं जिनके एविडेंस मिले, वहां पे वी हैव द एविडेंस ऑफ स्टोर्ड सरप्लस सीड्स। सो उससे भी लगता है कि यस, दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, उन्होंने जो सीड्स हैं उनको स्टोर किए एंड फिर यही जो लैंड प्रिपेयर करके वो एग्रीकल्चर की तरफ दे वर स्टेपिंग क्लोजर। फिर जो प्रोटो डोमेस्टिकेशन के एविडेंस भी हैं, अर्ली अटेम्प्ट्स एट एनिमल टेमिंग, जिसमें जो उस वक्त के जो एनिमल स्पीशीज थी विच लिव क्लोजर टू ह्यूमंस लाइक डॉग्स, दे दे likely domesticated as companions or helpers in the hunting. So हमारे पास दोनों एविडेंस है। The Mesolithic it stands at the period of proto-agriculture as well as proto-domestication. फिर the reasons of settlement उस टाइम के एविडेंस दोनों तरह के हैं, environmental and social दोनों। So first जो होलोसीन जो है, it provided stable climate, warmer and wetter climate which led to richer biodiversity. तो उसके लिए अब नोमैडिज्म जो है उसकी जगह नहीं थी। हमारे पास आसपास ही सब कुछ है। जब आपको जो फूड सिक्योरिटीज जो हैं वो आसपास ही मिल रही है, वेजिटेशन आसपास है, जो एक्वेटिक मरीन रिसोर्सेज है वो आसपास हैं, तो जब स्टेबिलिटी मिलती है तो फिर जो फोरेजिंग एक्सप्लोरेशन इन सब की जरूरत नहीं है। तो सेटलमेंट जो है इट बिकम लाइकली सिनेरियो। फिर रिलायबल रिसोर्सेज बता दिया आपको। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर जो टूल किट्स हैं इट विच वो कंसिस्टेड ऑफ माइक्रोलिथ्स, बोज एंड एरो, फिशिंग गियर, स्टोरेज पिट्स, ऑल ऑफ देम। ये सब के सब जब टूल किट्स बढ़ता है तो वो भी है ना, उनको एक बार बार कैरी करना, डेली कैरी करना वो भी कन्वीनियंट नहीं होता। सो जो ये चीज अगेन हम एक जो कंटेम्प्रेरी टाइम में एक एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि उस वक्त की पूरी सोसाइटी विद द सोफिस्टिकेशन, विद द न्यूअर टूल किट्स, with heights, with their society, with large social organization, they might not have traveled long when there wasn't any incentive to explore, to forage, to live a nomadic life. जितने भी इंसेंटिव है, जितने भी क्यूज हैं, ऑल ऑफ देम दे सजेस्टेड वन थिंग कि सब आपके साथ हैं, आप इतना सा कुछ माइक्रोलेथ, बो एंड एरो, जितने भी टूल किट्स हैं, जितने फिशिंग गियर्स हैं, वो सब भी आप कैरी नहीं कर सकते। सो इट इज बेटर यू स्टे इन वन प्लेस एंड सर्वाइव कंफर्टेबली। फिर यही है कि सर्वाइवल इंश्योर हो गया तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई। सो बहुत सारे लोग जो है उनके भी इंक्रीज मोबिलिटी जो है वो भी पॉसिबल नहीं थी। सो बेस्ट सिनेरियो जो जो था वो यही था कि स्टे टुगेदर इन अ सर्टेन प्लेस। फिर द सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशन ऑफ सिडेंटिज्म, कि अगर एक साथ जब रुकने लग गए एंड स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस इवन सीजनली, सो द कॉन्सिक्वेंसेस कि फर्स्ट stronger social bond started developing when people interact more to each other. Where when people stay at one place, so the labor will be divided, और labor division अगर है तो first task specialization was there, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं when a group of people are staying together, then somebody would create wooden platform, somebody fishing hooks, somebody microliths, somebody would look after the children, somebody would go on hunting, कुछ वेजिटेशन की तरफ देंगे, कुछ डोमेस्टिकेशन। तो इस तरह से टास्क स्पेशलाइजेशन होगा, लेबर डिवीजन होगा, तो हायरार्कीज भी होंगी। फिर जो
वाइज पर्सन है, दे विल बी हेल्ड इन एस्टीम. सो उसके साथ ही जो फैमिली एज अ यूनिट ऑल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग. सो ये है कुछ इम्प्लीकेशन इनके. फिर साथ में टेरिटोरियलिटी. टेरिटोरियलिटी मतलब ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका. फिर जो उसी की वजह से जो क्लान्स एंड ग्रुप्स जो हैं वो भी बनने लग गए. क्लान्स एंड ग्रुप्स बने तो साथ में जो है डिफरेंट जो टेरिटोरियल एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टेरिटोरियल ग्रुप्स हैं, दे स्टार्टेड सीकिंग देयर एलिजियंस वाया सम एंसेस्टर. सो यहाँ से ये डिफरेंट कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन या डिस्टिंक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो गया. फिर द ब्लॉसमिंग ऑफ कल्चरल लाइफ, कि इस वक्त जब साथ में रहते हैं देन there will be many people who will experiment with artifacts with aesthetic ideas. और साथ रहेंगे तो फिर ritual spaces, burials, the the beginning of a proto religion, beginning of proto cultural things. So ये सब possible changes हैं because of sedentary lifestyle. और ये हम इसलिए अभी तक सोच पा रहे हैं बिकॉज कि ये सिर्फ हमारे एजम्पशन नहीं. then a total sedentary life, a full sedentary life indeed started. Neolithic indeed was there. और वो just वो उसी वक्त मेसोलिथिक के एंड होते ही नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ. सो ये हम समझ सकते हैं कि जो नियोलिथिक का जो बैकग्राउंड है, जो प्लेटफॉर्म है, जो टेम्पलेट है, इट वाज क्रिएटेड बाय मेसोलिथिक. फिर हम बात करते हैं मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया. सो ये वाली जो साइट्स हैं ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ दीज वर फैक्ट्स जो आपको याद रखना है. सो दो साइट्स के बारे में बात करूंगा. सो ये साइट लांगनाज इन गुजरात एंड बागोर इन राजस्थान. So Langnaj is located in Mehsana district, Gujarat, estimated from between 9000 to 7000 BCE, and it's a key feature microlithic tool industry, which was again a hallmark of Mesolithic culture. So इस sites पे microliths मिले हैं like blades, scrapers and points. फिर about the subsistence strategy. So the faunal remain, जो animal remain यहाँ पे मिले हैं, deer, antelope, cattle, fish, which suggest broad spectrum subsistence strategy. Broad spectrum means animal protein, fishing, and agriculture. तीनों के बेसिस पे द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज बीइंग एंश्योर्ड. सो यहाँ पे द होमो सेपियंस एक्सप्लॉइटेड बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज. फिर several human skeletal were buried, which again suggests that this time experimented with the ritualistic or symbolic burial. And this period, this area around Langnaj was likely savanna-like, which with the woodland and marshes. So people may be living in temporary camps. So again, a typical pattern of semi-sedentism. फिर जो second जो site है Pago, which is located in Bhilwara district, Rajasthan, occupation 7000 to 2000 BCE, and one of the largest and most extensively excavated Mesolithic site in India. So ये आपके लिए important है. फिर features, this site it divided into three cultural phases: Mesolithic, Transitional, and Chalcolithic, which suggests that this site was continuously occupied by Homo sapiens of the time, continuously occupied for over thousands of years. फिर माइक्रोलिथिक टूल किट की बात करते हैं. सो यहाँ पे जो टूल किट है इट इंक्लूड्स ज्योमेट्रिकल टूल्स लाइक ट्रेपेजीज, ल्यूनेट्स, एंड all of them they might have been used in composite hunting weapons like arrows and spear. फिर फिशिंग एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज, तो फिशिंग गियर्स, फिश बोन, ये सब भी मिले हैं. और साफ कुठारी रिवर पास में ही है, तो इससे जाहिर है कि उस वक्त के जो होमोसेपियंस है they have had exploited the aquatic resources. Fair, this site also provide earliest evidence of animal domestication in India, especially of cattle. And this site has provided evidence of herds, pets, and living floor, which suggests उस time तक
the people started living in organized domestic spaces, या तो seasonal or even semi-permanent settlements. फिर कोस्टल एंड रिवर एंड अडेप्टेशन की बात करते हैं. वैसे बेसिक्स तो आपको पहले ही डेप्थ में बता दिया है कि इस पीरियड में व्हेन क्लाइमेट स्टार्टेड वार्मिंग, तो उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉडीज क्रिएट हुई, और उसके साथ ही फॉर होमो सेपियंस ऑफ दैट टाइम द एक्वेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. फिर एनवायरमेंटल बैकग्राउंड बता दिया आपको. तो साथ में ये है कि जो कोस्टल वाटर बॉडीज हैं, दे प्रोवाइडेड फिश, क्रैब, शेलफिश, मॉलस्क, एक्वाटिक बर्ड्स एंड एडिबल प्लांट्स. और ये जो वाटर बॉडीज हैं, दे आल्सो प्रोवाइडेड फ्रेश वाटर, रॉ मटेरियल लाइक शेल्स एंड बोन्स एंड स्टेबल फूड अवेलेबिलिटी ईयर राउंड. और उसके लिए जो इनोवेशंस थे, फिशिंग हुक्स which were made from bone and antler, फिर nets, traps and net sinkers which were made from stone or baked clay, फिर spears and harpoons and shell middens which is a large heap of discarded cells. It also suggests that जो shellfish है, it was also used as a staple food. फिर एविडेंस की बात करते हैं. जो वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली द कोंकण कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट. तो जो कोंकण कोस्ट है, ये इट रन्स फ्रॉम गोवा थ्रू महाराष्ट्र, गोवा थ्रू महाराष्ट्र एंड देन वेस्टर्न घाट, जो आप जानते हैं कि जो कर्नाटका से लेकर केरल तक. सो ओवरऑल जो टोटल वेस्ट कोस्ट जो है, इस पे जो एविडेंस है, दाभोल in Gujarat, Bhatkal and Anjadiva, all of them they provide evidence of marine exploitation. Shell middens were there, shell tools, fish bone, all of them they provide evidence that कि ये साइट जो है होमो सेपियंस के द्वारा यूज की गई थी. फिर गुजरात में जो कोस्टल प्लेन लाइक लांगनाज, they also show use of aquatic resources. फिर जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यहाँ पे भी सेटलमेंट एविडेंस मिले हैं, और साथ में बहुत सारे फिशिंग टूल्स एंड फॉनल रिमेन्स भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यस, दीज साइट्स दे वर यू नो they were settled for either permanent, semi permanent और seasonal way, और साथ में जो aquatic resources हैं वो भी यूज किए गए. फिर यही है कि जो प्रेडिक्टेबल एक्वाटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो उसी टाइम पे पीपल विल स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड. सो सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका बेसिक आपको पहले ही बता दिया. फिर जो एविडेंस है उसके कि कैंप साइट्स वर देयर, स्टोरेज पिट्स एंड हर्ट्स वर देयर. फिर द एविडेंस ऑफ तो फॉनल रिमेन्स, फिश रिमेन्स, या फिर जो फिशिंग गियर्स हैं उनके भी रिमेन्स है. तो उनसे पता चलता है कि कोई जगह जो है, इट माइट हैव बीन सीजनल और सेमी परमानेंट. फिर जो फाइनल एलिमेंट, फ्रॉम मीजोलिथिक टू नियोलिथिक, और इसका एविडेंस जो है, ये इसके बारे में जो बेसिक्स जो है या जो थीम है, ये बार बार कवर हो ही चुकी है कि किस तरह से मीजोलिथिक जो है, इट इज प्रोवाइडिंग लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर नियोलिथिक. सो एक ये है कि इस वक्त में एक्सपेरिमेंट हुए थे that human began to adopt semi-sedentary lifestyle, especially near aquatic resources. So एक is semi-permanent, semi-sedentary lifestyle बढ़ते हैं. और फिर उसके बाद है कि early experiment with domestication was also there, domestication of both plants and animals. फिर the toolkit, the micro toolkit, the seasonal camps, the evidence of herds, or the possible cultivation of wild cereals, the storage of seeds, all of them suggest कि तो एंड जो उस वक्त का जो ह्यूमन था, it was gradually moving towards what was later on the chief characteristic of Neolithic. फिर pits, huts and storage methods, ये भी जो है which are signs of permanence, जो बाद में Neolithic के characteristic थे, वो भी अभी तक दिखने लग गए. So ये जो जितने भी cultural experiment है in food production, in habitation, in domestication, in agriculture, in settlement, all of them they led the foundation for Neolithic revolution. फिर एक बार previous year question insight देख लेते हैं. So question asked about microlithic tools, material, technique and
the difference with the Paleolithic tools, subsistence strategy, about diversification in diet, in that includes small game fishing and gathering, where transition to sedentism, the semi-permanent lifestyle, near aquatic resources, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। फिर इंडियन साइड लांगनास बागोर, इनके बारे में भी पूछा गया है। फिर एनवायरमेंटल पैटर्न्स लाइक पोस्ट प्लेस्टोसीन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी। और फाइनली ये जो है मीजोलिथिक पेविंग द वे फॉर नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जो अभी लास्ट में बताया, उस पर भी क्वेश्चन है। तो बॉर्डर लेवल पे ये 6 तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, एंड दिस इज इट। फिर अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ डिटेल में आप चाहते हैं, वो देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इन डेप्थ मैंने जो क्रिएट करने की कोशिश की है, वो इसलिए कि जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो कुछ अगर ऐसा रहेगा जो आपको रीडिंग से समझ में आता है, तो पीडीएफ आपके लिए है ही। बाकी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट overall after the end of this lecture you might have got a clear idea about what Mesolithic was and what were the clear changes. So basics आपको जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री से आपको बताने की कोशिश की कि इस ये जो जितने भी चेंजेस हैं, all of them were gradual and we were gradually ascending towards being the modern Homo sapiens. फिर the key changes, the key environmental changes during the end of Upper Paleolithic, जिसकी वजह से Mesolithic स्टार्ट हुआ। सो उसमें our ancestor proved agile and resourceful, और उन्होंने फिर कुछ इन्वेंशंस किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए। they adapted themselves to the changing climate, और वही क्लाइमेट की पूरी स्टोरी जो है इट इज Mesolithic। बट ज्यादा कुछ ऐसे जितने मेजर चेंजेस जो है इससे पहले हुए थे उससे तो उतने नहीं। माइक्रोलिथिक टूल्स में चेंजेस हुए, फिर जो रिसोर्सेस थे वे दे वर क्वाइट अबंडेंट, तो एक्वेटिक रिसोर्सेस के लिए फिशिंग गियर्स, स्मॉल गेम हंटिंग के लिए जो माइक्रोलिथ्स हैं वो हो गए। फिर सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डोमेस्टिकेशन, तो यही चेंजेस हैं। फिर भी इफ समथिंग कम्स अप यू कैन drop the comments. This is it. Thank you very much.